IND ٹوڈے نے حالیہ اپنے چاہنے والوں کو خبر دی تھی کہ آج سے آرمی ریکروٹمنٹ شروع ہونے والا ہے، لہٰذا ضلع کریم نگر کے ڈاکٹر BR امبیڈکر اسٹیڈیم میں اس ریکروٹمنٹ کا آج سے آغاز کر دیا گیا ہے، جو کہ 10 نومبر تک چلتا رہے گا۔ خبر ہے کہ ریاست کے 31 اضلاعوں سے ملٹری میں بھرتی کے شوقین قریب 50,000 سے زیادہ نوجوانوں نے اس سلسلے میں اپنا آن لائن رجسٹریشن کروایا ہے۔ سکندرآباد آرمی ریکروٹمنٹ کے لوگوں نے ضلع کریم نگر کے ایڈمنسٹریشن کی مدد سے یہ ریکروٹمنٹ شروع کیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم اور حلقہ حیدرآباد کے شہرت یافتہ پارلیمانی ممبر نقیب ملت جناب بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی نے آج حلقہ چار مینار کے مختلف علاقوں جیسے پرانا پل اور اس کے اطراف و اکناف کے لوگوں سے گھر گھر جا کر ملاقاتیں کی، ان کے مسائل جانے اور فوراً انہیں حل کر دینے کے لیے ان کے ہمراہ آئے ہوئے کئی کارپوریٹرز، بلدی، برقی اور آبرسانی کے کئی عہدیداروں کو ہدایات بھی جاری کر دی۔ اس موقع پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے متمد اعلیٰ جناب الحاج احمد پاشا قادری اور سینکڑوں مجلسی ابتدائی صدور و معتمدین اور سرگرم کارکن بھی ان کے ساتھ رہے۔ شہر حیدرآباد کے ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن کے عہدیداروں نے آج ایڈیشنل انسپکٹر شری وی انجی ریڈی کی صدارت میں عامر علی خان کی شکایت پر، جو کہ ہمایوں نگر کے ساکن ہیں، ایک دیرینہ چور 60 سالہ عبد الوحید خان ولد لطیف خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ جہانما کے ساکن اس شخص کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ یہ راتوں میں کئی چوریوں میں ملوث رہا ہے۔ اسے گرفتار کر کے 43 تولے سونے کے زیورات اور 10,000 روپے نقد رقم برآمد کر لی گئی ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ملکہ فرنیچر، معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر، برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش، معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا حسب استطاعت بھی جہیز کا مکمل فرنیچر سیٹ 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملکہ فرنیچر، روبرو والٹا ہوٹل مغل پورہ، حیدرآباد۔ شہر حیدرآباد کی سائبر کرائم ٹیم کے لوگوں نے آج 2 دھوکے باز ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک ہے ریاست جھارکھنڈ کے ضلع گرید کا ساکن 23 سالہ پون کمار عرف پون، اور دوسرا ویسٹ بنگال کے ضلع بردھمان کا ساکن 33 سالہ کیلاش باوری۔ بتایا گیا کہ ان دونوں نے سیل فونز کے ذریعے اپنے آپ کو SBI کا عہدیدار ظاہر کرتے ہوئے 2 لوگوں امبرپیٹ کے ساکن محمد کلیم الدین اور ترمل گری کے ساکن سچیدانند دویویدی کو دھوکہ دے کر ای کامرس کے ذریعے ان کے اکاؤنٹ نمبرز حاصل کیے اور 3.5 لاکھ اور 1,11,600 روپے کی رقم ان دونوں کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر لی۔ ان دونوں کو گرفتار کر کے مزید کیسز کی جانچ شروع کر دی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ کی محکمہ پولیس کے لوگوں نے ریاست میں کم عمر بچوں کے سماج میں استحصال کے خلاف میں 1 سالہ پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کا افتتاح شہر حیدرآباد کے پیپلز پلازا پر 3 نومبر کو شام میں کیا جائے گا۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ سال بھر ساری ریاست میں مختلف پروگرامز کے ذریعے مختلف نکات سے عوام کو روشناس کیا جائے گا، جیسے جنسی ہراسانی، بچوں میں ہراسانی سے بچنے کے جذبے کو اجاگر کرنا، انہیں شکایت کرنے کے قابل بنانا، سارے ماحول سے اس برائی کو دور کرنا اور ان کے حقوق کی پامالی کو بچانا۔ ان تقاریب میں وزیر اعلیٰ کے دفتر کے اعلیٰ عہدیدار، DGP، کئی محکمہ جات کے صدور اور کئی بیرونی مہمان شریک ہوں گے۔ شہر حیدرآباد کے مختلف اسکولز اور کالجز کے قریب 6,000 طلباء و طالبات کے ان تقاریب میں شرکت کرنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ جناب محمد محمود علی نے آج ایک تحسین آفریں اقدام سے حالیہ دنوں میں سماج میں ابھر کر آ گئی ایک برائی کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنی حکومت کی عزت پر داغ لگنے سے بچا لیا۔ IND ٹوڈے نے حالیہ دنوں میں خبر دی تھی کہ دل بدل MLC فاروق حسین ایک کرائے کے فلیٹ میں رہتے ہوئے اپنے مکاندار NRI خاتون محترمہ امت الواسع سے نازیبہ رویہ اختیار کرتے ہوئے مکان خالی کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نائب وزیر اعلیٰ نے آج MLC فاروق حسین سے کچھ پیپرز پر دستخط کر کے مکان خالی کرنے کے پروانے کو لے کر
मकानदार के हवाले कर दिया, जो कि फ्लैट नंबर 403 स्किल स्प्लेंडर अपार्टमेंट्स में वाक़ है। खबर है कि फारूक हुसैन एमएलसी अगले साल 31 जनवरी को ये मकान खाली कर देंगे। देखना है कि ये इस परवाने की कितनी कदर करते हैं। हैदराबाद की जीएचएमसी ने शहर के मुख्तलिफ जगहों पर जमा हुए पानी को साफ करने के लिए एक प्रोजेक्ट से अब जुड़ गई है। खबर है कि 1,86,00,000 की लागत वाले एक मोबाइल आरओ यूनिट को बरवेकार लाकर शहर के मुख्तलिफ गढ़ों और कुंडों में जमा पानी को साफ करके मुस्तकबिल में पीने के काबिल बनाया जाएगा। इस मोबाइल आरओ यूनिट को मुंबई के रोचम इंडिया से लिया गया है। इब्तिदाई काम जवाहर नगर इलाके से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 6.5 लाख से ज्यादा की लागत आने वाली है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5 से 6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। हमारे मुल्क भारत में बॉलीवुड का हमेशा चर्चा रहा है। इसी दौरान रियासत तेलंगाना के टॉलीवुड ने भी समाज में अपना सिक्का जमाने में कामयाबी हासिल की है। इससे हटकर हालिया दिनों में शहर हैदराबाद के एक दक्कनी ग्रुप ने भी कई दक्कनी फिल्म्स समाज में लाकर अपने आप का लोहा मनवा लिया है। इस ग्रुप में सबसे नामवर फनकार गुल्लू दादा माने जाते हैं। आईएनडी टुडे के हमारे नुमाइंदे शहबाज बाबा ने उनसे मुलाकात की और बताया कि फनकार गुल्लू दादा की साबिका मेहनत अब रंग लाई है और उन्हें बॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म साजन चले ससुराल नंबर 2 में अपनी सलाहियतों को मनवाने का मौका मिल गया है। लिहाजा हैदराबाद दक्कन के ये ऐसे फनकारों में अब शामिल हो गए हैं जिन्हें दुनिया में कुछ कर दिखाने का मौका मिला है। इस मौके पर शहर की एक कारोबारी शख्सियत जनाब हबीब मोहम्मद ने शहबाज बाबा के हमरा हैदराबाद के उभरते हुए फनकार गुल्लू दादा को गुलदस्ता पेश किया है। शहर हैदराबाद के नानल नगर के इलाके खादरबाग में आज महकमे बरकी के डिप्टी इंजीनियर जनाब फरहतुल्लाह ने आज कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी कारपोरेटर जनाब नसीरुद्दीन के साथ सारे ही इलाके का दौरा करके बरकी के देरीना मसाइल का जायजा लिया और जल्द से जल्द उन्हें हल कर देने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर उनके हमरा इलाके के इब्तिदाई मजलिसी सदर जनाब शब्बीर खान, मस्जिद इब्राहिम की कमेटी के सभी मेंबर्स के साथ साथ कई मजलिसी सरगर्म कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। हमारे मुल्क के एनसीआरआई यानी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट और आरजीएनआईवाईडी यानी राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट के बीच में आज एक मुआहिदा तय पाया है कि दोनों मिलकर रूरल इंडिया को तालीमी याफ्ता बनाने के लिए हर मुमकिना कोशिश करेंगे, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। इस बात को चेयरमैन एनसीआरआई श्री प्रवीण कुमार ने आज मीडिया को बताई। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद में सरकारी अस्पतालों की ज़बो-हाली तो सभी पर आया थी। ले देकर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर लोग भरोसा किया करते थे, अब वो भरोसा भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गया है। विजयनगर कॉलोनी में वाक़े एक प्राइवेट रोहन हॉस्पिटल से अभी ताज़ा खबर आई है कि
किसी बीमारी से मुतासरा एक 3 माह के बच्चे को इलाज के लिए उस दवाखाने में शरीक करवाया गया था और वहां की इंतजामिया ने उस बच्चे का ऐसा इलाज किया कि वो बच्चा आज फोत हो गया। अब जाहिर सी बात है कि बच्चे के लवाहिकीन इंतजामिया पर गफलत बरतने का इल्जाम लगाएंगे ही, लेकिन डॉक्टर्स ने उनकी बात को नकार दिया और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। बात पुलिस तक पहुंची और वो मसरूफ तहकीकात आ गई है। लेकिन सोचने का लम्हा ये आ गया है कि अरसे दराज से शहर में एलोपैथी की नाकामी के बेशुमार केसेस उभर कर सामने आए हैं। क्या इसका सेहरा एलोपैथी की नाकामी के सर जाता है या फिर इसके इलाज करने वाले इसकी सही तालीम हासिल ही नहीं कर पाए हैं? इस सिलसिले में जरूर छानबीन होनी चाहिए। शहर हैदराबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम के ओहदेदारों ने आज एक मुसाफिर के पास से 363 ग्राम सोना बरामद कर जब्त कर लिया और उसके खिलाफ में एक केस भी बना दिया है। ये मुसाफिर जिद्दा से सऊदी एयरलाइंस के जरिए हैदराबाद पहुंचा था। इस सोने की मार्केट में कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई गई है। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसम जाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। हैदराबाद के पुराने शहर के वट्टापल्ली इलाके में वाक़े गुंटल शाह बाबा दरगाह के पास में हालिया दिनों में महसन, साजन और जाफर नामी नौजवानों ने इलाके के एक 26 साल नौजवान सोहेल खान पर छुरियों से कातिलाना हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया था। उसे नाजुक हालत में उस्मानिया दवाखाना पहुंचाया गया और आज इलाज के दौरान सोहेल खान ने दम तोड़ दिया है। इस मौके पर इस बात का यादा करना जरूरी हो गया है कि साबिक़ा में यह देखने में आया कि 7 साल या 10 साल की सजाएं कातिलों के जहनों से कत्ल के जरासीम को निकालकर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में कामयाब नहीं हो सकी हैं। लिहाजा कानून में तरमीम अब जरूरी बन गई है। बीजेपी सदर अमित शाह के केरला दौरे के बाद अब बीजेपी ने अपनी सारी तवज्जो उधर मरकूज कर ली है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने आज मीडिया को बताया कि केरला में लव जिहाद की आड़ में जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां चल रही हैं, उनके लिए पार्टी में तशवीश की लहर आ गई है। हालिया उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने इस मसले को उठाया था। बहरहाल बीजेपी के भगोड़े एमपी विजय माल्या की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस में हुर्रियत दहशतगर्दी फंडिंग के मामले में कांग्रेस की चुप्पी को उछालने की कोशिश भी की है। रॉयल भूटान के शाह ने भारत के दौरे पर आकर अपनी फैमिली के साथ आज सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने चाइना के साथ हालिया डोकला मुद्दे के तनाज़े को सुलझाने में भूटान की मदद की सराहना की है। हिमाचल प्रदेश में बुजुर्ग कायद सीएम वीरभद्र सिंह की सदारत में आज कांग्रेस पार्टी ने मजीद 5 सालों के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। इस मौके पर रियासत के कई आला सतही लीडर्स भी वहां पर देखे गए। मरकजी वजीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह ने आज हिमाचल प्रदेश का दौरा करके एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब किया और बताया कि सारी रियासत में हर तरफ रिश्वत सताने का माहौल गर्म है। बीजेपी के कौमी सदर श्री अमित शाह भी हिमाचल प्रदेश पहुंचकर सिराज इलाके में मुनक़िदा एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत को अपने काम का हिसाब देना चाहिए, जैसा कि बीजेपी अपने कामों को खुलेआम करते हुए उनका हिसाब देती आई है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने गुजरात के इंतखाबी माहौल में जिले भड़ूच के एक जलसे को मुखातिब करते हुए गुजरात के तरक्की की पोल खोलने की कोशिश की और खास तौर पर वहां के अहम मुद्दे पानी की जरूरत को आवाम के रूबरू लाया, जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया गया है, ऐसी खबर है।